Hello students, you, me, this stylus, the TV, the floor on which I'm standing. Actually, there's a tile below my feet. And the chair on which you are sitting, the table on which you have kept your book, and the whole system. We are talking about resources. This is geography, first chapter, resource and development. As I said, everything is a resource, whatever is available with us. आप कुछ भी देख लीजिए. The clothes which you are wearing, this watch, this kada, this stylus, this television, all are resource. How much they are developed is what the value says. ये जो टीवी है, ये बहुत बड़ी टीवी है, तो उसकी कीमत उतनी ज़्यादा है. You have got stones, वो भी resource है, but then you need to develop it. If you develop a stone into an idol of your god and goddesses, you know how much do they value. You go to a shop where you have these souvenirs which are expensive because from a material they are made. So development has taken shape. Mineral water. Directly we do not go and fetch water from rivers and drink. But then from the same rivers, they do process and give you mineral water, which is an expensive thing. So in this chapter, we are going to learn about water resources we have, how are they developed, and what is our role in that. Natural resources की हम बात करेंगे. चलिए, let's start the chapter with the definition. So everything in this world which has some monetary value, which can be utilized by us, is called resource. सवाल है, क्या आप और मैं resource हैं? तो जवाब यह है कि I am the resource if I say, and if I say I am resource, what's my value? Monetary value क्या है? So the salary which I am earning is my monetary value. So I am a resource. And you know, the most important resource on the earth is human being, human capital, human resource. सबसे important है. क्यों? सोचा है? क्योंकि अगर हम नहीं हैं तो ये कुछ नहीं है. Every resource on the earth is utilized by human resource. तो हम सबसे important resource हैं. Feel so proud. बहुत ज़्यादा importance मिल रहा है. चलिए. What we are talking about here is we are at the center or the apex, and then there isn't this triangle. You have nature, technology, and institution. Now what are we talking about? We are talking about, are these resources free, gift of nature? Yes, they are free. God is not charging any fee from you to take anything whatever is available in and around you, naturally. But then, if we do not develop these natural things and all that, their value will remain free. अगर मैं मिट्टी उठा के लाके ऐसे ही आपको दे दूं तो वो मिट्टी है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी. हाँ, बट उस मिट्टी का अगर मैं गमला बना दूं तो उसकी एक वैल्यू हो जाएगी थोड़ी सी ज़्यादा. और वो बनाने के लिए ऐसा तो नहीं कि हर कोई बंदा, हर कोई जना गमला बना देगा. तो you need institution so that we can utilize the natural resources in a right way, and for which you require technology. So this is the triangle which we need to keep in mind. We are the center of this triangle. We make use of nature through institution and technology, and then we get better result. So we transform the material available in the nature and the environment, and they are known as resources, and then we utilize them. So keep this simple thing in mind. They might ask you for 3 marks. Moving ahead, and we are talking about how these resources are important. As we all know, सारी चीज़ें जो अवेलेबल है विद इन अ कंट्री और या पूरी धरती पे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे आर दी बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी. कोई भी चीज़ ले लीजिए. लेट्स लुक एट दिस पिक्चर. तो ये जो पानी है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो लैंड है वो इंपॉर्टेंट. ये जो पहाड़ हैं वो इंपॉर्टेंट. ये जो पेड़ हैं वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है. हर चीज़ रिसोर्स है, हर चीज़ की एक वैल्यू है. आप जितना ज़्यादा उसे रिफाइन करोगे, जितना ज़्यादा अच्छा करोगे, उतनी ज़्यादा वैल्यू मिलेगी. Simply, if you are well educated, the heavier the degree, the bigger the salary. तो जितना ज़्यादा developed resource, उतनी ज़्यादा value. Resource form the base of economic strength and prosperity. If you have more resources, your country will be strong economically. देखिए, historically we are actually conquering nations. Why do we conquer nation? For trade, for resources. Because they do not have resources. England, we were the colony of English people, so they do not have the resources. They came in India for the resources, raw materials. हमारे पास ज़्यादा थे. We could not utilize them in a better way, and they did it.
तो हमारी प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ सारे हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज पे डिपेंड है. By utilizing the natural resources, humans have created their own world of living. हर चीज जो हमारे यहाँ है हमने उसे अच्छी तरीके से यूज किया है, तब जाके हमारा जो घर बना है वो ईंट पत्थर सीमेंट से घर बनता है. वैसे ही अगर वो पड़े रहे तो कुछ भी वैल्यू नहीं है उसकी. मूविंग अहेड विद द सेम टॉपिक, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. नाउ अब इतने सारे रिसोर्सेज हैं तो वी हैव कैटेगराइज देम, क्लासिफिकेशन कर दिया. ये शायद सबसे इजी चीज होगी आपकी, आपने पहले भी पढ़ा है, आप इसको एक गो में आराम से याद रख सकते हैं. एक स्टेटमेंट, एक एग्जांपल, दैट्स इट. लेट्स टॉक अबाउट द ओरिजिन. सो अब रिसोर्सेज जो भी आपके पास अवेलेबल है उनकी ओरिजिन के बेसिस पे हम उन्हें किस कैटेगरी में डालते हैं वो हम पढ़ रहे हैं. सो बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज. मैंने साइंस की क्लास में ये पढ़ा था व्हेन आई वाज द स्टूडेंट कि बायोटिक मतलब लिविंग और अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग. तो अब आपके इर्द गिर्द आप जहां बैठे हो, अपने घर में, स्कूल में, कहीं पे भी देखिए लिविंग थिंग्स क्या है. तो आपको लगेगा ओ आपके फ्रेंड्स लिविंग बिंग है, प्लांट्स लिविंग बिंग है, ठीक है. अगर वहां पे फिश टैंक है तो लिविंग बिंग है. तो ये सारी बायोटिक रिसोर्सेस हैं. और जिस बेंच पे आप बैठे हो वो नॉन लिविंग थिंग है. जो पेन पेंसिल आपके हाथ में है वो एक नॉन लिविंग थिंग है, वो अबायोटिक रिसोर्स है, पर उसकी वैल्यू है, इसीलिए वो रिसोर्स है. आप उसको यूज कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो और उसकी वैल्यू है. तो याद रखिए कि बायोटिक क्या है, बायोटिक लिविंग है और अबायोटिक नॉन लिविंग है. फिर एक एग्जांपल लिख देना है, आंसर डन. तो ओरिजिन के से आगे बढ़ते हुए देखते हैं एग्जॉस्टिबिलिटी, खत्म हो जाने के बेसिस पर. ये भी हमने काफी बार पढ़ा है. देखिए रेन्यूएबल रिसोर्सेस विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, वो रेन्यूएबल है, तो ये एग्जॉस्ट नहीं होते हैं, इसीलिए हम उन्हें डालते हैं रेन्यूएबल रिसोर्सेज की चीज में. अब आपको इनके एग्जांपल लिखने हैं तो सोलर एनर्जी लिख दीजिए, विंड एनर्जी लिख दीजिए, वाटर एनर्जी लिख दीजिए, ये सारे रेन्यूएबल हैं. अब नॉन रेन्यूएबल क्या है, जो खत्म हो सकते हैं, विच टेक लॉट ऑफ टाइम टू फॉर्म बट देन दे आर लिमिटेड इन नेचर एंड कैन बी एग्जॉस्टेड वन डे. तो वो क्या होगा, आप कोई भी फॉसिल फ्यूल लिख दीजिए. जो सारे फॉसिल फ्यूल आते हैं एनर्जी के लिए वो सारे नॉन रेन्यूएबल हैं. कभी ना कभी आगे जाके फ्यूचर में वो खत्म हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे. कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ऑयल है, एवरीथिंग कम्स अंडर नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज कैटेगरी. मूविंग अहेड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. ओके, दिस स्टाइलस, दिस कड़ा, दिस रिंग एंड दिस वॉच बिलोंग्स टू मी. सो आई एम एन इंडिविजुअल ओनर. योर कार, योर हाउस, योर प्लॉट, यू आर द ओनर. योर बैग, योर बाइसाइकिल, आप ओनर हैं, तो वो इंडिविजुअल रिसोर्सेस हैं. अब कम्युनिटी ओन रिसोर्सेस क्या होंगे, बरियल ग्राउंड्स, पॉन्ड्स, पार्क, ये सारे कम्युनिटी ओन रिसोर्सेस हैं. आप एग्जाम्पल समझ जाओगे, आप स्टेटमेंट बड़े आराम से लिख लोगे, क्योंकि रिसोर्सेस विच बिलोंग टू द होल कम्युनिटी वो कम्युनिटी रिसोर्स होते हैं. स्कूल, ऐसा तो नहीं कि आपके खुद का स्कूल है, हाँ हो सकते हो आप इंडिविजुअल ओनर, बस सिर्फ आप अकेले नहीं पढ़ रहे हो, इट्स फॉर एवरीवन. सो दैट वे ये कम्युनिटी रिसोर्स हो जाते हैं. आगे चलते हैं और देखते हैं ओनरशिप में ही नेशनल रिसोर्स क्या है और इंटरनेशनल रिसोर्स क्या है. ओके, एक छोटा डिफरेंस, जैसे फ्लो होता है वी गेट इनटू ग्रूव्स दैट नेशनल तो कंट्री का होगा, इंटरनेशनल तो दूसरों का होगा. नो, एक छोटा स्लाइड डिफरेंस है यहाँ पे. ये शायद उन बाकी चीजों से ज्यादा टेक्निकल और नया है. दैट्स द मैप ऑफ इंडिया. अब हम बात करेंगे वॉट एवर रिसोर्स विद इन द नेशन, वेदर दे आर इंडिविजुअल और कम्युनिटी, डोंट यू थिंक इट ऑल बिलोंग टू कंट्री? यस, तो वो नेशनल रिसोर्स हो जाएंगे. एवरीथिंग विद इन द नेशन, जो फॉरेस्ट है, मिनरल्स है, वाइल्ड लाइफ है, एवरीथिंग इज अ नेशनल रिसोर्स. प्लस दे आर सेइंग फ्रॉम द बाउंड्री और फ्रॉम द कोस्ट up to 12 nautical miles, which is 19.2 kilometer from the water, from the coast, here until here. These resources belong to nation. तो इतनी एरिया में ये सब नेशन के रिसोर्स होंगे पानी के जगह पे. But then how about boundary? यहाँ पर ये लैंड बाउंड्री है ना, तो यहाँ से तो 19.2 नहीं जा सकते हैं. तो रिमेंबर दिस इज ओनली वेयर इन ओशन, कोस्टल एरिया में अगर आपका है तो. आपकी एक और डाउट क्लियर कर देता हूं जो ज्यादा बच्चों को होती है, बट दे नेवर आस्क. श्रीलंका इज वेरी क्लोज टू इंडिया. अब उसमें कैसे रिसोर्स डिवाइड करेंगे, तो इक्वल, हाफ, आधा किलोमीटर जो होगा, नॉट हाफ किलोमीटर, इट्स लाइक इफ इट इज 100 किलोमीटर अपार्ट देन 50
will be mine and 50 will be yours. This is how the countries which are close to them divide their national resources. Now let's move to international resources. But obvious, beyond this boundary would be international resources, and international organization plays good important role wherein they have the permission to allow the countries to utilize those resources. जैसे UN है, उनकी bodies हैं, they have the control over the international resources, और वहां पर आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते. You need to take permission, then only you can utilize those resources. See, ocean resources beyond 200 kilometer of exclusive economic zone belong to open ocean, and no individual country can utilize these without the permission of international institution. So कोस्ट से 200 किलोमीटर तक आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन होता है wherein the development can be done, and even mining. Now when I say mining, it's actually drilling where you take out petroleum, oil, natural gas. Remember Mumbai High, Bombay High, वो 60 किलोमीटर कोस्ट से बॉम्बे सिटी से दूर है जहां से हम ऑयल और नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो वो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में बिलोंग करता है और वो नेशनल रिसोर्स है. मूविंग अहेड, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. अब कुछ नई चीज सीख रहे हो आप, जैसे आपने नेशनल इंटरनेशनल सीखा, ये भी थोड़ा सा नया है. पोटेंशियल रिसोर्सेस. ओके, यू माइट हैव कम अक्रॉस दिस स्टेट्समेंट बाय योर टीचर where they say कि this gentleman or this boy or this girl has a potential to be the topper or ranker in the school, but not utilizing that potential and hence lagging behind. ये potential मतलब आपके अंदर जो काबिलियत है वो होता है potential. ये बिल्कुल physics वाला potential energy और kinetic energy. Everything is still until and unless you apply some force so that they will move. तो वो kinetic में होगा, तो potential है उसमें move होने का. जब तक हम धक्का नहीं देंगे वो मूव नहीं होगा. तो ऐसा ही कुछ ये है कि पोटेंशियल रिसोर्स क्या है. सी, वी हैव लॉट ऑफ रिसोर्सेज विद आवर कंट्री विच आर पोटेंशियल बट वी हैव नॉट यूटिलाइज देम. तो वी गो टू राजस्थान एंड वी विल फाइंड आउट वी हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी, बट टू दैट एक्सटेंट वी हैव नॉट यूटिलाइज्ड इट. तो वो पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं. अच्छा, क्या हम इन्हें यूज कर सकते हैं फ्यूचर में? यस, इसीलिए हम उन्हें पोटेंशियल कह रहे हैं. दूसरा होता है डेवलप्ड रिसोर्सेज. अब देखिए बहुत स्लाइट डिफरेंस होगा इसमें. रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमिन्ड. मैंने चेक किया यहां पर रिसोर्स है, किस क्वालिटी का है, कितनी क्वांटिटी में है, वो मैंने सब देख लिया है. द डेवलपमेंट ऑफ दीज रिसोर्सेज डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी. मैंने चेक किया यहां पर XYZ रिसोर्स हैं, फिर मैंने देखा कि मुझे ये टेक्नोलॉजी लगेगी, क्या मेरे पास है, क्या मैं ये टेक्नोलॉजी ला सकता हूं, क्या मेरे पास इंस्टीट्यूशनल सेटअप है. इफ ऑल दीज थिंग्स आर इन माय फेवर एंड फिजिबल इकोनॉमिकली एंड सोशली ऑल्सो एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, तभी जाके हम ये रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट करेंगे. देखिए, आप अंटार्कटिका में या साइबेरिया में स्लीवलेस टी शर्ट्स नहीं बेच सकते हो. ये वही हो गया कि गंजे को कंघी बेचना. समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं आपको इकोनॉमिकल फिजिबल होना चाहिए, बट कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए वो. तो जब एक्सेप्ट होगा तभी आप वो रिसोर्स को डेवलप करोगे. अगर क्वालिटी और क्वांटिटी कम है तो भी आप नहीं करोगे. विच मीन्स आई डिड अ सर्वे, आई फाउंड आउट देयर इज एन रिसोर्स XYZ, कंसिडर कोल है. पता चलता है कि क्वालिटी जो है वो अच्छी क्वालिटी वाला कोल नहीं है. आई माइट टेक अ रिस्क, आई माइट रिमूव इट और माइट नॉट रिमूव इट, डिपेंडिंग कि कितना खर्चा होगा. उस खर्चे को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट रिसोर्स के ऊपर कॉल लिया जाता है. एंड ऑल दिस इज डन बाय गवर्नमेंट. प्राइवेट कंपनीज हैं जो माइनिंग करती हैं, बट देन इट्स देयर कॉल एंड दे विल नेवर पुट हैंड wherever they have less profit. ये चीज आप ध्यान रखिए. This is all economics. Let's back to geography. On the basis of the status of development, stock और reserve, एक बहुत अच्छी सी चीज है इन दोनों को याद रखने के लिए. Please remember this word, know how. मैं पहले रिजर्व समझाता हूं आपको. They are saying reserves are the subset of stock. ये मैथ्स में सेट्स पड़े होंगे, बड़ी सी सर्कल, फिर उसके अंदर एक छोटी सी सर्कल, तो सबसेट हो जाती है. तो जैसे ही कि स्टॉक जो है ना, रिजर्व जो है वो सबसेट है स्टॉक का.
which can be put to use with the help of existing technology, but their use has not been started. मेरे पास कुछ रिजर्व रखा है मैं उसे तब यूज करूंगा जब मेरा मेन खत्म हो जाएगा. कार्स, बाइक, रिजर्व पेट्रोल होता है. बाइक में आप देखोगे नॉट आप ऊपर नीचे करते हो तब वो रिजर्व में जाएगी. कब? जब आपका मेन फ्यूल टैंक खाली हो जाएगा तब आप वो रिजर्व यूज करोगे. यही चीज यहां पर लागू होती है. हमारे रिजर्व रिसोर्सेज हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, पर हम उसे अभी यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं. वी नो हाउ टेक्नोलॉजी. एग्जाम्पल, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट. हमें आता है बट हमने डैम्स बनाना कम कर दिया है या लिमिटेड है. वंस वी नो वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, वी कैन कम बैक एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू हाइड्रो पावर प्लांट्स. ये आपका रिजर्व है. तो फिर चलते हैं ऊपर. स्टॉक एग्जैक्टली क्या है? ये जो टेक्नोलॉजी है ना, नो हाउ. We don't know the technology know-how, and that's why we are not able to use these resources. Once we know this technology, once we have this technique, we will use these resources. उफ, काफी complicated सा है. मेरे पास एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, थोड़ा केमिस्ट्री से रिलेटेड है. वाटर, what is the chemical formula of water? H2O. What I understand is 2 molecules of hydrogen and 1 molecule of oxygen. अब क्या आपके पास टेक्नोलॉजी है कि आप हाइड्रोजन पानी में से निकाल लो या फिर ऑक्सीजन पानी में से निकाल लो? नहीं है ना. कोई भी आप में से ऐसा है जो म्यूटेंट है, जो फिश टैंक में सर डाल लेगा और फिर वहां से ऑक्सीजन सक कर लेगा? नहीं है हम में से कोई. तो जब वो टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो हम इस स्टॉक को यूज करेंगे. चलते आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट्स द नेक्स्ट टॉपिक. डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस. अब आ जाते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेस है, हम उसे कैसे यूज करेंगे, ये हम कैसे यूज कर रहे थे. डोंट यू थिंक वी एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेस? एक जनरल क्वेश्चन है, टॉपिक को साइड में रखते हैं, जनरली पूछते हैं, हम रिसोर्सेस को सीरियसली एक्सप्लॉइट करते हैं? और ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द रिसोर्सेस विल ऑलवेज लीड टू प्रॉब्लम्स. लेट्स सी व्हाट आर प्रॉब्लम्स आर वी फेसिंग. Depletion of resources for satisfying the greed of few individual. Why are these resources are depleting? Because few individuals are very greedy. They want more and more and more so that they can have lot of profit. और ये हैं individual owners of mines. Some countries are also part of it. जो बहुत ज़्यादा extraction of resources कर रहे हैं और वो मार्केट में इतना ज़्यादा ले आते हैं कि उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, इजीली अवेलेबल होता है, इजीली अवेलेबल होता है तो हम उसे मिसयूज करते हैं. देखिए बेटा, हर सस्ती चीज़ को हम बहुत सस्ता आंकते हैं और उसको वेस्ट करते हैं. अगर वही चीज़ महंगी होगी आप उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखोगे. ये हमेशा हर इंडिविजुअल की मेंटालिटी है, आइडियोलॉजी है. Accumulation of resources in few hands has actually led to this disbalance in society. What is this disbalance? Many rich and poor people. So you have rich and poor and the gap is widening. तो ये डिसबैलेंस सोसाइटी में कैसे क्रिएट हुआ? क्योंकि कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इंडियन कंपनी एंड द प्राइवेट ओनर्स, स्पेशली Reliance Industries. So everything within the country is produced by Reliance. So he has accumulated the wealth which is not even, what do you know, I mean 80% of people have that much of wealth what Mr. Mukesh Ambani is having, the owner or the top richest people. तो ये जो wealth accumulated है वो कुछ ही लोगों के हाथों में और बहुत ज़्यादा है. अब तीसरा देखते हैं. Indiscriminate exploitation of resources has also led to problems, ecological problems. ग्लोबल वार्मिंग, हम हमेशा बात करें ना, बर्फ मेल्ट हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, रिवर्स सूख रहे हैं या पोल्यूट हो रहे हैं, ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन है. ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से ही ओजोन लेयर में होल्स हैं और जिसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ती जा रही हैं. कार्बन जो है वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा बढ़ रहा है, इसीलिए आइस मेल्ट हो रहा है. ये सब क्यों हो रहा है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन. रिच और पुअर क्यों है? इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ कर रहे हैं. और हम क्यों कर रहे हैं ये सब चीज़? बिकॉज देर आर फ्यू ग्रीडी पीपल एंड टू सेटिस्फाई देम हम इसको जितना हो सकता है उतना यूज़ कर रहे हैं.